Hello children, welcome to the channel. Today we're going to do lesson number 2.6, Science and Spirituality. Okay, let's warm up. Get into pairs or groups and match the columns. अभी columns match करनी है. What is science? Science is the intellectual and practical activities in a systematic study of structure and behavior of the natural world through experiment and observation. Religion क्या है? Religion is a belief in and worship of a superhuman controlling power, God. Okay? Spirituality. Spirituality is the quality of being more concerned with the human spirit as opposed to material or physical things. Philosophy is the study of the basic nature of knowledge, reality, and existence, especially as an academic subject. Theology, the study of nature of God and religious belief. Given below are some incomplete quotes. Complete them choosing from the word science or religion or spiritual and make them meaningful. तो ये 3 words हमको दिया, इसको हमको इधर डाल के meaningful sentence बनाना है. तो spirituality without religion is lame. Religion without science is blind. Science has outrun our spiritual power. We have guided missiles but misguided man. इसका मतलब क्या है? Spirituality without religion. अगर हम बहुत रिलीजियस बोलते हैं अपने आप को लेकिन अंदर आत्मिक कुछ भी नहीं है तो वो बकवास है. लेम मतलब यूजलेस. रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. बिना रिलीजन के साइंस भी अंधे के जैसे एक चीज है. साइंस हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर. साइंस अभी इतना बढ़ गया है टेक्नोलॉजी की, हमारी जो आत्मिक शक्ति है उससे भी आगे बढ़ चुकी है साइंस. मतलब हम सोचते हैं ऐसा. इसकी वजह से हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स तो है कि मिसाइल सही टारगेट में जाके हिट करेंगे, लेकिन मिसगाइडेड मैन मतलब लेकिन आदमी हमारा आजकल इंसान ऐसा हो गया कि उसकी हर हरकत बेवकूफ जैसे हो गई है. मिसगाइडेड मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी करता आदमी. ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी वी ऑल हैव द सेम डेस्टिनेशन. रिलीजन इज मेंट टू अवेकन मैन्स लव फॉर हिज सोर्स गॉड. Spirituality provides a means with the creator of heaven and earth in the language of your heart and soul. Science is a beautiful gift to humanity. We should not distort it. ठीक है, जैसे अभी साइंस, ये सही बात है, साइंस एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन हम लोग उसको खराब करते हैं. कैसे? बोलते हैं कि हम लोग बंदर से आए, दैट इज एवोल्यूशन. तो दैट इज उसकी वजह से हम लोग अपना जो ये गिफ्ट है ना उसको बर्बाद कर देते हैं, हम उसको खराब कर देते हैं. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? Science is a study, technology is the application. So you write a small paragraph on this. Why? What is science and what is technology? So remember, science is a study of something. जैसे हमने इधर पढ़ा था, देखो. What is science? The quality of the intellectual and practical activities in a systematic study of structure and behavior of the natural world through experiment and observation. आप साइंस के लिए ये लिख सकते हैं, it is a study. But टेक्नोलॉजी क्या है? वो साइंस जो हमने स्टडी किया है उसका एप्लीकेशन करके उससे कुछ बना के जिसका हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. ओके, नाउ डू यू थिंक दैट साइंस एंड फेथ आर बोथ इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स? व्हाई? डिस्कस इन योर ग्रुप एंड गिव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास. प्रेजेंटेशन तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आप ये बताइए कि साइंस एंड फेथ हमारे लाइफ में दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों. ओके, राइट अ स्मॉल पैराग्राफ. वी नीड साइंस टू अंडरस्टैंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड to analyze, deduct and develop theories. Okay, we need faith for what? To enable our spirit to soar high and to get through life, है ना. Without faith जिंदगी से गुजरना बहुत ही मुश्किल है. Now refer to a dictionary to find out the meanings of the following words. डिक्शनरी खोलिए और ये सब जो वर्ड्स है तो सब स्पिरिट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सबका मीनिंग थोड़ा अलग है. स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिस्ट. ठीक है, डिक्शनरी से इसकी मीनिंग निकाल लीजिए. अभी हम लेसन की ओर जाते हैं. Science and spirituality. Part 1. We often witness conflict between two groups of people. One that believes in science and the other that believes in religion. आज के टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत ऐसा भेदभाव है. किसलिए? कोई बोलते हैं कि जो इतना साइंस पे बिलीव करते हैं कि बोलते हैं कि रिलीजन करके कुछ चीज है ही नहीं. लेकिन व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज अ बिलीफ इन समथिंग. किसी चीज पे विश्वास करना रिलीजन है. तो साइंस क्या है? हाँ, साइंस इज समथिंग दैट यू रिसर्च, राइट, जिसके हम स्टडी करते हैं चीजों की, उसको हम साइंस कहते हैं. हाँ, एंड लोग जो साइंस पे बिलीव करते हैं वो भी तो एक रिलीजन ही हो गया ना. फिर इफ यू बिलीव इन समथिंग, व्हाट इज रिलीजन? बिलीविंग इन समथिंग.
सो यू आर बिलीविंग इन साइंस, दैट इज ऑल्सो अ रिलीजन. सो देर इज एक्चुअली नो डिस्कॉर्ड. लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर तुम रिलीजियस हो तो यू कैन नॉट बी साइंटिफिक. दैट इज वेरी रॉन्ग. इनफैक्ट जो बेस्ट साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड, द बेस्ट साइंटिस्ट, इवन आइजक न्यूटन, he was a very strong believer in God. He was a very strong believer in God. ठीक है. सो साइंस एंड रिलीजन एक्चुअली गो टुगेदर. विदाउट साइंस, विदाउट रिलीजन, साइंस इज इनकम्प्लीट. डॉक्टर कलाम के बारे में अब ये स्टोरी है. ओके, डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो हम सब जानते हैं. दिस इज इनडिस्प्यूटेबल. बट ही इनडिस्प्यूटेबल मतलब इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं, एवरीबडी एग्रीज. But he was also convinced that fact and faith can together create a better planet. Fact and faith can together create a better planet. He once told me, science and faith must coexist for the human good. Science provides focus. Focus helps us solve questions, discover the truth and conceive inventions. So उन्होंने कहा basically कि science and faith, साइंस और साथ में विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास साथ में ही जाते हैं, तभी जाके कुछ वी कैन डू समथिंग बेनिफिशियल. ठीक है. अगर जैसे साइंस के हिसाब से तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हम लोग वी डोंट हैव टू लुक बैक, राइट. लेकिन व्हाट डज रिलीजन टीचर्स कि वी शुड केयर फॉर अदर्स ना. तो अगर जब साइंस और ह्यूमैनिटी साथ में, रिलीजन साथ में होगा तो इट क्रिएट्स अ बेटर सिचुएशन फॉर पीपल टू केयर फॉर ईच अदर. ओके, मतलब द मेंटल सिचुएशन इज बेटर. लेकिन इफ अ पर्सन सेज ओनली साइंस इज इंपॉर्टेंट, उसके लिए humanity is not important, so that doesn't work well. Science should go with humanity. Okay, that's when it is beneficial for the whole earth. Now faith provides perspective. Perspective मतलब एक view. ठीक है, a perspective, a particular attitude towards something. Perspective helps us see how our creations and discoveries go on to impact a combination vital for the success of societies. तो फेथ की वजह से हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है, जिसकी वजह से जो एक पर्सपेक्टिव हमारे जो हम लोग डिस्कवर करते हैं, जो बनाते हैं जो चीज़ है, हाँ, वो कैसे सोसाइटीज को प्रोग्रेस कराती. साइंस एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस एंड फेथ कर्व्स इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशन. जैसे मैंने कहा, साइंस से हम आगे बहुत बढ़ जाते हैं, जैसे नई नई चीज़ें बना के. लेकिन फेथ क्या करता है, हमको एक लगाम जैसे खींच के रखता है, ताकि हम वी डोंट गो बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस. इफ द टू फंक्शन ट्रू टू देयर रोल्स, दे विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, व्हाई डू साइंस एंड फेथ हैव टू गो हैंड इन हैंड? हियर इज योर आंसर. डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स. डॉक्टर कलाम जो थे ना, उनके लाइफ में भी अलग अलग फेथ्स की वजह से उनका आउटलुक ऐसे था लाइफ में. His father, a boatman, वो एक बोटमैन थे, also served as an imam at their local mosque, and his two best friends were from two different religions. One was a Hindu and the other was a Christian. Pakshi Lakshmana Shastrigal was the head priest of the famous Rameswara temple and a Vedic scholar, and the Reverend Father Bodal had built the first church on Rameswara Island. ठीक है, तो ये इनके दो दोस्त थे. Dr. Kalam recalled how all three of them, in the unique attire of their religion, used to sit and discuss the community's problems and find solutions. तो इधर एक हिंदू, एक मुसलमान और एक ईसाई साथ में बैठ के अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. Throughout the nation and the world, the need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilizations is felt now more than ever. वो कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है, आज का जो सिचुएशन है दुनिया में, उसकी वजह से अभी आज ऐसा डायलॉग होना, बिटवीन इंटर रिलीजियस डायलॉग होना बहुत ही जरूरी है, ऐसा करके कह रहे हैं. When asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute it to his father. उनके अंदर जो नम्रता थी, जो कहीं पर भी वो जाते थे, he was known for his humility. वो उनको कहाँ से मिली? वो कहते हैं उनके पिताजी से. In him he saw how simplicity and divinity could go together. नम्रता और स्पिरिचुअलिटी दोनों कैसे साथ में जाता है, वो उन्होंने अपने डैडी से सीखा. इवन दो हिज फादर वाज अ बोटमैन, वो तो थे सिर्फ बोटमैन, लेकिन डॉक्टर कलाम वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उनका बेटा क्या बन गया? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड दे शेयर द सेम वैल्यूज इन लाइफ. दोनों का एटीट्यूड सेम था. बोथ बिलीव दैट इफ वन लीड्स ए स्पिरिचुअल लाइफ, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure. उन्होंने क्या बोला? अगर हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं ना, तो तब जाके हम लोग अपने आप विल बी क्लियर, हमारा माइंड विल बी क्लियर, विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड इवन फेलियर और मिसरी. इधर एक कॉमा आना चाहिए, इधर भी एक कॉमा आना चाहिए.
In the 1960, now we're going to part 2. Okay, if possible we'll finish the workshop also along with this. If not, we'll have workshop in the next video. In the 1960, when Dr. Kalam joined ISRO, it was just a fledgling organization. Fledgling मतलब नया बच्चा, छोटा organization था ISRO in 1960. His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion. इन दोनों की वजह से उनका धर्म की तरफ जो विचार थे उससे उनका धर्म की तरफ जो विचार था उसका शेप हुआ है, मतलब उसके बेसिस में उनका विचारधारा बना है. It was here that he learnt about the true meaning of religious service. Professor Sarabhai and his team had selected a site in Tumba, Kerala to set up their space research facility. ठीक है, तुम्बा के केरला के तुम्बा में उन्होंने एक जगह उनको मिली थी जहाँ पर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी खड़ा करने का बहुत अच्छा जगह था, क्योंकि इट वॉज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर. प्रॉक्सिमिटी मतलब करीबी, किससे? मैग्नेटिक इक्वेटर से करीब था, इसलिए वो जगह बहुत आइडियल था. तो इसका आंसर है ना, वाई वॉज द साइट इन तुम्बा सेलेक्टेड फॉर बिल्डिंग द स्पेस रिसर्च सेंटर? बिकॉज ऑफ दिस इज द आंसर. बट देयर वॉज अ मेजर रोड ब्लॉक, लेकिन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था इन गेटिंग पोजेशन ऑफ द साइट, एज इट वॉज द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ तुम्बास फिशरमैन. लेकिन वो जगह एक्वायर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके पास सामने खड़ा था. क्यों? क्योंकि वो जो जगह था वो तुम्बा के जो मछुआरे थे उनके लिए वो मछुआरे का बहुत नेट फैलाने का शायद जगह था वो. तो मोर ओवर इट हैड एन ओल्ड चर्च ऑफ सेंट मेरी मैगदलीन, बिशप्स हाउस एंड ए स्कूल विच वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च. क्या क्या था उधर? एक चर्च था, बिशप का घर था, स्कूल था, हाँ, जो चर्च के अंडर था. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेडिक्टेड दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रिलोकेट. अभी वो इनको ये सब देख के उनको लग रहा था ये तो इट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, हम ये जगह एक्वायर नहीं कर पाएंगे. सो मेनी पीपल फ्रॉम द साइट एंड to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of a space research center. एक space research center बैठाने के चक्कर में इतने सारे लोगों को उनको हटाना पड़ेगा, तो सब लोग people are sure कि ये काम नहीं करने वाला है. तो what shaped Dr. Kalam's thoughts on religion? Here, his interactions with the Professor Vikram Sarabhai and Reverend Peter Bernard. So here is your answer for this on top, right here. Okay, this is the answer for that question. What shaped Dr. Kalam's thoughts on religion? Then what was the major obstacle in getting possession of the site? उसका आंसर इधर है. ओके, ये फिशिंग ग्राउंड था तुम्बा के फिशरमैन का, उधर चर्च था, स्कूल था, बिशप का घर भी था, तो इट वुड बी डिफिकल्ट. ओके, सो बट अपॉन डॉक्टर साराभाई's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation. एक ही आदमी उनको ये तकलीफ से मतलब मदद कर सकता था तकलीफ में. कौन था वो? फादर पेरेरा. वो बिशप का उस रीजन का उस टाइम बिशप था. तो डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच्ड फादर पेरेरा ऑन अ सैटरडे इवनिंग. एक दिन उसके पास गए. द रेवरेंड सेड, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माई चिल्ड्रंस अबोर्ड, फॉर माई अबोर्ड एंड फॉर गॉड्स अबोर्ड. यहाँ तो हम जीते हैं, हमारे बच्चे जीते हैं, हमारा परमेश्वर इधर है. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे करें? फादर पेरेरा देन इन्वाइटेड द पार्टी टू विजिट द चर्च ऑन ए संडे मॉर्निंग. फिर उन्होंने बोला हमारे संडे मॉर्निंग का सर्विस आप लोग अटेंड करो. So Dr. Sarabhai, his team and the forever inquisitive disciple Dr. Kalam took up the offer. तो ये लोग सब मिलके चर्च में गए संडे को सर्विस के. At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. प्रेयर होने के बाद उन्होंने उनको ऊपर बुलाया. फिर turning to everyone present, he said, अभी वो बिशप बात कर रहा है, उन्होंने अपने लोगों से बात की. क्या कहा? Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai. यहाँ देखो आपके सामने एक साइंटिस्ट खड़े हैं. What does service do for us? Sorry, scientist जो science, obviously science. So what does science do for us? We benefit from the devices that science has developed to light up our homes, है ना. साइंस की वजह से आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है. I am able to talk to you using this mic thanks to technological advancement. मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ किस लिए यूज कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है. मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट्स. मेडिकल में साइंस में जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुआ है उसकी वजह से हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट ले पाते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना. ओवरऑल साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना देता है. एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रीचर? आई प्रे फॉर यू. और मैं एक प्रीचर होने के नाते क्या करता हूँ? मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके वेलबींग के लिए प्रार्थना करता हूँ और आपके शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ. इन शॉर्ट, विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब. एक हिसाब से हम दोनों एक ही टाइप का काम कर रहे हैं. बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी सीक द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन
माइंड एंड बॉडी, ठीक है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलके हमारे अच्छे के लिए ही काम करते हैं। डियर चिल्ड्रन, डॉक्टर विक्रम सेज दैट विद इन अ ईयर ही वांट्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फैसिलिटी नियर द सी कोस्ट। 1 साल के अंदर उनको एक साइंटिफिक फैसिलिटी इधर एक बनाना है उनको, जिसमें वी हैव टू रिप्लेस ऑल द सेटलमेंट्स दैट नाउ स्टैंड हियर, जिसकी वजह से हमारे इधर जो भी सेटलमेंट्स है सबको हटाने पड़ेंगे। नाउ कैन यू गिव अप योर अबोर्ड, क्या आप अपना घर दे सकते हो? कैन आई गिव अप माई अबोर्ड, क्या मैं अपना घर दे सकता हूँ? कैन वी गिव अप गॉड्स अबोर्ड फॉर सच अ ग्रेट साइंटिफिक मिशन, क्या हम जो चर्च है उसको भी हम निकाल सकते हैं क्या ये इतने साइंटिफिक मिशन के लिए? द डॉक्टर कलाम रिकॉल्ड हाउ ही विटनेस्ड अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। थोड़े टाइम के लिए सब एकदम ही शांत हो गए ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद। देन एवरीवन गॉट अप, फिर सब खड़े हो गए। एंड द होल चर्च रेवर्बरेटेड विद अ डेफनिंग नॉइस ऑफ ए कलेक्टिव आमेन। आमेन का मतलब है हाँ, वी एग्री। आमेन एक वर्ड है जो क्रिश्चियंस प्रेयर में यूज करते हैं, उसका मतलब है जो दूसरा बोल रहा है उसके साथ दे एग्री। सो जैसे थोड़े टाइम के लिए एकदम ही शांत थे, सडनली आवाज क्या आया? आमेन, मतलब सबने एग्री किया। सो हाउ डिड द पीपल रेस्पॉन्ड टू द अपील मेड बाय रेवरेंड पेरेरा? वुड यू हैव गिवन द सेम रेस्पॉन्स? आप दैट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ कि वुड यू हैव गिवन द सेम रेस्पॉन्स? आई कैन नॉट टेल यू, लेकिन हाउ डिड द पीपल रेस्पॉन्ड? दिस इज द आंसर हियर, ओके। And so work on the research center was soon underway, but not without alternate accommodation being offered to the affected fishermen. ठीक है, तो काम शुरू हो गया, लेकिन पहले उन्होंने फिशरमैन, चर्च और रेवरेंड पेरेरा को पहले जगह रहने के लिए जगह बना के दिया। Okay, now part 3. A few years later, in the early 1980s, Professor Satish Dhawan, the director of ISRO, under whom Dr. Kalam had made his first unsuccessful launch in 1970 and then a successful one in 1980, had provided him with more soul-shaping wisdom. ठीक है, तो इनके साथ इनकी जो मुलाकात से उनको और भी बुद्धि, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बातें करने के लिए मिली, जिससे उनको बहुत कुछ लाइफ में सीखने के लिए मिला। One day in 2012, we were discussing the number of PhDs डॉक्टर कलाम had received. ठीक है, डॉक्टर कलाम और ये जो ऑथर है वो बात कर रहे थे अभी 2012 में। He said to me, Srijan, Professor Dhawan had so many master's degrees, all from the best institutions and no less. So I asked him how one can become so academically accomplished. ठीक है, तो उन्होंने एक दिन उनको पूछा कि प्रोफेसर धवन के पास इतने डिग्रीज थे, हाँ, सो वो इतने कैसे वो मतलब अकम्प्लिश, मतलब इतना कैसे पढ़ लिख सकते हैं ऐसे? He responded saying that academic brilliance is no different from the brilliance of a mirror which can be diminished by a coating of dust. तो उन्होंने क्या कहा, हम पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा एक सपोज कोई मिरर है आपके घर में जो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है और उस पर डस्ट लगता जा रहा है, तो जितना भी आप पढ़ लें अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो इट इज लाइक दैट मिरर कोटेड विद डस्ट, उसमें आपका रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा। Only when the dust is removed does the mirror shine and the reflection becomes clear. तो हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अगर हम वो सोसाइटी के लिए यूज नहीं करेंगे तो देर इज नो यूज। जस्ट लाइक अ मिरर, उसके ऊपर डस्ट लगा है, जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे इट इज नॉट यूजेबल, यू कैन नॉट सी योर सेल्फ। ओके, ओनली व्हेन द डस्ट इज रिमूव्ड does the mirror shine and the reflection becomes clear. We can remove the impurities obscuring our souls by living pure and ethical lives and by serving humanity. तो हम जो हमारे पास जो अंदर जो हमारी गंदगियां हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं? एक शुद्ध और अच्छी जिंदगी जी के, मॉरल जिंदगी जी के, और लोगों की सेवा करके। एंड देन गॉड विल शाइन थ्रू अस, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे थ्रू चमक सकते हैं, है ना। These words took me back to my meeting with Dr. Kalam after my graduation from IIMA in 2009. ये बातें सुन के अभी ऑथर फिर से एक पुरानी बात याद कर रहे हैं, उनके साथ जो डॉक्टर कलाम के साथ बात हुई थी। At the time, he had advised me to use my degree and gold medal to transform the society I lived in. जो एडवाइस कलाम जी को धवन जी ने दी थी, वो अभी कलाम जी ने फिर से ऑथर को दी, और ऑथर ये याद कर रहा है। और उन्होंने उनकी ग्रेजुएशन के टाइम ये एडवाइस दी थी कि उनकी जो डिग्री है और जो गोल्ड मेडल है उसको यूज करके अपने सोसाइटी को बदलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं उसको बेचने का, उसका मतलब है कि अपना जो नॉलेज है वो सही तरीके से यूज करने का। हाँ, पढ़ लिख के क्या फायदा अगर हम सही तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते। बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट इट सडनली स्ट्रक मी दैट डॉक्टर कलाम्स एडवाइस हैड इन फैक्ट डायरेक्टली रेसोनेटेड फ्रॉम प्रोफेसर धवन्स बिलीफ। अभी इन्होंने जो बात बताई एक्चुअली उनको किसने बताई थी? कलाम जी को धवन जी ने बताई थी। सो दैट इज हाउ वी पास ऑन आवर नॉलेज टू अदर्स। हमको कोई कुछ अच्छी बात बताते तो हम दूसरों को बताते, है ना। So, the more I lived and worked with Dr. Kalam, the more I realized that through his words of wisdom, I was getting to learn from countless great minds. हाँ,
इससे उनको एक रियलाइज हुआ कि यार मेरे को बहुत बड़े बड़े लोगों के दिमाग से सीखने के लिए मिल रहा है। इनके किसके वर्ड्स के थ्रू? डॉक्टर कलाम की वजह से। सो whose philosophy actually had an impact on the writer? Whose philosophy? Dr. Satish Dhawan's philosophy had an impact on the writer actually, जो डॉक्टर कलाम ने इनको बाद में बताया. What advice did Dr. Kalam give the narrator after his graduation? This is the advice. Okay. Now in April 2009, Dr. Kalam was invited to attend the 102nd birthday celebrations of His Holiness Dr. Sri Sri Siva Kumar Mahaswamiji in the Tumkur district of Karnataka. Okay, उनको एक invitation मिला था एक 102nd birthday के लिए इनका. Mahaswamiji is a remarkable person. He has dedicated his life to the service of humanity. उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा की है. What was Mahaswamiji's tremendous contribution? His greatest contribution is the establishment of a free residential education system for more than 9,000 children in the ashram. The most astounding aspect of the entire event of his birthday was that the 102-year-old Swamiji stood on his feet without any support. He looked as steady and alert as any other youngster present there. 102 साल की उम्र में भी he was standing like an adult. मतलब बिल्कुल झुके नहीं, बिल्कुल हिले नहीं. Wow. This display of inner strength touched Dr. Kalam deeply. ये डॉक्टर कलाम को बहुत छू गई ये बात. A couple of days later, we were discussing this unusual birthday party. I said to him, "Sir, do you know only 4 out of 1 lakh people cross the age of 100?" क्या बोले? सिर्फ 1 लाख लोगों में से सिर्फ 4 लोग 100 की उम्र के ऊपर जाते हैं. I had googled the subject beforehand. He replied, "But how many of these 4 would be able to stand tall for half an hour giving a wise discourse and then go on to feed thousands of children?" But बोले उन 4 में से भी, कलाम जी ने पूछा, उन 4 में से भी कितने लोग आधे घंटे के लिए लेक्चर देने के बाद खड़े होके बाद में जाके हजारों बच्चों को खाना खिलाता है. Of course, nobody could know the exact answer to his question, but the question itself led to many other relevant queries. ठीक है. I wonder what powers Mahaswamiji possesses that keeps him so strong at such an advanced age. क्या है उनके अंदर ऐसा क्या पावर है जिससे वो इतने इस उम्र में भी इतने स्ट्रांग है? मे बी इट्स अ बैलेंस डाइट. तो सोचे शायद अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, और शायद मे बी जेनेटिक्स जीन्स होगा. वी डोंट नो. डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली. और डॉक्टर कलाम इस चीज के बारे में सोचने लगे. He recollected the tenet of goodness of action from Pramukh Swamiji. Then, perhaps swimming in silence to the shores of Mahapragya Ji, he gathered the sands of conscience to be our guide, our best friend. उनके पुराने एक्सपीरियंस जब वो स्विम किया करते थे महाप्रज्ञा जी जो नदी में, तो उस टाइम उनके मन में जो विचार आते थे वो सब अभी वो रिकलेक्ट कर रहे हैं और अपना आंसर उसके हिसाब से दे रहे हैं. डीपर डाउन इन द स्पेस टाइम ऑफ मेमोरी, ही मस्ट हैव हर्ड प्रोफेसर ब्रह्मा प्रकाश's words about the need of living a pure and ethical life, and Father Pereira's and Dr. Sarabhai's lesson of selflessness in service. Eventually, his thoughts would have settled on Swami Sivananda of Rishikesh, in whom he saw great tranquility. And finally, they must have come full circle with the memory of the life of simplicity of his father, who always espoused the value of giving back. तो उनको बहुत चीजें अभी वापस याद आ रही है ये सवाल जो उन्होंने पूछा उसकी वजह से. फिर फाइनली उन्होंने बात की. क्या? At long last, he spoke. It is the very spirit of what can I give, he elaborated. क्या बोला उन्होंने? अल्टीमेटली आंसर क्या दिया है कि मैं क्या दे सकता हूं, इस वजह से ये है. इसका आंसर उन्होंने क्या बोला कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं. He elaborated. Mahaswamiji lives with the beliefs and ethos of our mission. He gives and gives education to famished minds, food to famished bodies. ठीक है. वो सिर्फ देते हैं, लेते कुछ नहीं. What was the secret of Mahaswamiji's fitness even at the age of 102 years? एक तो healthy lifestyle and balanced diet definitely. दूसरा है कि ये इधर से लेके आगे और भी पढ़ेंगे हम. His munificence या generosity, जो देने की जो इच्छा है, fuels his strength. उसकी वजह से उनके अंदर ताकत ज्यादा है. जाना ज्यादातर देना है, मुझे दूसरों को देना है, उसकी वजह से उनके अंदर वो ताकत है. That is what keeps him standing tall and active in life. जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी जीने की इच्छा है कि मुझे देना है दूसरों को. वो एक इच्छा की वजह से वो इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहे. The essence of a happy life and a peaceful society lies in one sentence. What can I give? मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, उसके ऊपर lies the essence of what? A peaceful society, happy life and peaceful society. Turning to me, he asked, what is the reverse of what can I give? Circumspectly, यानी कि संभाल के उन्होंने जवाब दिया. What can I take?
क्या मैं क्या ले सकता हूँ, उसका ऑपोजिट है ना. येस ही सेड, एंड दैट इज अ थॉट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग वी सी अराउंड अस. क्या हम ले सकते हैं, ये विचार की वजह से आज हम न सब गड़बड़ दुनिया में देख रहे हैं. वी थिंक दैट वी कैन टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय इट इनडिस्क्रिमिनेटली. वी थिंक ऑफ वॉट वी कैन टेक फ्रॉम अदर ह्यूमन्स लीडिंग अस टू करप्शन एंड इनिक्विटी. हम हमेशा यही सोचते हैं हम दूसरों से क्या ले सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है हमको, है कि नहीं. दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग एंड टेकिंग इवन डिस्ट्रॉयज फैमिलीज. इसकी वजह से परिवार भी टूट जाते हैं. टू कीप दिस प्लैनेट लिवेबल एंड द ह्यूमन रेस थ्राइविंग, वी हैव टू रिप्लेस दिस एटीट्यूड ऑफ व्हाट कैन आई टेक विद द गुडनेस ऑफ व्हाट कैन आई गिव. ये एटीट्यूड को हमको बदल के क्या एटीट्यूड रखना है, व्हाट कैन आई गिव. द ग्रेविटी ऑफ द मैसेज स्ट्रक मी. ये बहुत ही उनको पसंद, मतलब बहुत ही छू गया ये बात. दिस चैलेंज बिकेम माई साइलेंट मोटिवेशन. इसकी वजह से वो उनका एक एम बन गया, अभी मुझे ये ऐसा ही कुछ करना है. 3 years later in 2012, this idea became a reality as our What Can I Give movement, through which Dr. Kalam tried to combat corruption, environmental degradation, and social evils. It is important that we ask ourselves this question, for in the answer lies the truth of humanity. So go ahead and question yourself, what can I give? The answers will be astounding. इसके साथ हमारा लेसन खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशॉप करेंगे. ओके, चलो.